حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، بی بی این خبر نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبر نامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد پرانا پل فرقے وارانہ اشتعال انگیز کا معاملہ، چلہ مبارک کو نقصان پہنچانے والے 11 اشرار گرفتار، خاتون بھی شامل، سی سی ٹی وی شواہد کی بنیاد پر گرفتاری، جوڈیشل کسٹڈی میں دیے گئے تمام ملزمان۔ عوامی احتجاج یا غنڈہ گردی، حیدرآباد میں آٹو بند احتجاج کے دوران شہریوں کو مشکلات، یونین کے کچھ عناصر نے آٹو زبردستی روکے اور مسافروں کو اتارا، تلنگانہ پولیس کا سخت کارروائی کا انتباہ۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے تلنگانہ کے وفد کی سوئٹزرلینڈ آمد، ایئرپورٹ پر تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیا پرتپاک استقبال۔ وزیر اظہر الدین نے ٹیمریز ویب سائٹ کا کیا افتتاح، ریاست بھر کے 205 اداروں میں آن لائن داخلے کا آغاز، داخلوں کے لیے ہر ادارے میں ہیلپ ڈیسک قائم۔ تلنگانہ حکومت انتخابی سیاست پر عمل پیرا، میں پوچھ تاچھ کی نوٹس سے خوفزدہ نہیں ہوں، بی آر ایس لیڈر ٹی ہریش راؤ کا دعویٰ، فون ٹیپنگ معاملے میں پولیس کے سامنے ہوئے حاضر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پرانا پل میں فرقے وارانہ واقعے پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک خاتون سمیت 11 شرپسندوں کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات۔ حیدرآباد کے پرانا پل علاقے میں پیش آئے فرقہ وارانہ نوعیت کے واقعے پر پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ایک خاتون سمیت 11 شرپسند عناصر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی راجندر نگر کے مطابق یہ افراد غیر قانونی اجتماع میں شامل تھے، جنہوں نے اشتعال انگیز نعرے لگائے اور مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں عوامی امن و امان متاثر ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 15 جنوری کی رات تقریباً 11:30 ایک شخص میسمہ مندر میں داخل ہوا اور وہاں نصب فلیکسی بینرز اور پلاسٹر آف پیرس کی مورتی کو جزوی نقصان پہنچایا، جس کے بعد بعض مشتعل افراد جمع ہوئے اور چلہ مبارک میں بے حرمتی کے واقعات پیش آئے، جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور تکنیکی شواہد کی بنیاد پر نوجوانوں، مزدوروں، سبزی فروشوں، خانگی ملازمین اور ایک خاتون سمیت ملزمان کی شناخت کی گئی، جن کا تعلق پرانا پل اور پادری واڑہ علاقوں سے بتایا گیا ہے۔ گرفتار شدگان چوکٹ شنکر عرف بولو، چوکٹ ابھیشیک، کالی والے کوشال سنگھ عرف کشال، اندومالا ورون عرف بابی، اندومالا ارون عرف منو، چوکٹ رامن عرف نانو، کالی والا بھومیش، ایسلی والا گنیش، جگیلا سندیپ، دامڑی وشال سنگھ اور کالی منجو کو کل 19 جنوری کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا، جبکہ دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں سرگرم ہے۔ پولیس کمشنر وی سی سجنار آئی پی ایس کی ہدایت پر علاقے میں گشت بڑھا دیا گیا، فلیگ مارچ اور حساس مقامات پر سیکیورٹی سخت کی گئی اور عوام سے امن برقرار رکھنے، افواہوں سے گریز اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، بی بی این نیوز۔ حیدرآباد شہر میں بعض آٹو یونینز کی جانب سے آٹو بند کی کوشش کے دوران سڑکوں پر کئی آٹوز کو روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم کچھ علاقے جیسے پرانا شہر یا خودپورہ اور بڑا بازار میں آٹوز معمول کے مطابق چلتے ہوئے دیکھے گئے۔ یا خودپورہ سی ٹی یو آٹو یونین کے نمائندوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بند اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اوبر، اولا اور ریپیڈو کی سروسز سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے پابندی عائد کریں تاکہ ان کے مالی نقصان کو روکا جا سکے۔ قریب 10 سال ہو گیا ہے ابھی آٹو چلا کے، آٹو لائن میں آ کے آٹو والوں کی حالت اس لیے خراب ہے، جو نشے میں کچھ چند آٹو والے ہیں جو نشے کی حالت میں آٹو چلاتے، سواری اٹھاتے، وہ سواری کو پتہ نہیں رہتا
ये पी के है या गांजा का या कोई चीज़ का नशा करके है, वो हिसाब से ऑटो लाइन बदला में। और यकीन मानो आप, अदर तेलंगाना स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट के 3 लाख ऑटो हैदराबाद में चल रही। पहले ऑटो वाले का रोजगार 1500 रुपये 2000 रुपये था, अभी 1000 रुपये कमाना मुश्किल है। यहाँ पे इतने लोग ठहरे हुए हैं, लेकिन किसी के पास अपनी खुद की जाती गाड़ी नहीं है, सब किराए की चलाते। 300 रुपये किराया निकालो, 300 की गैस जलाओ, फिर उसके बावजूद भी कभी कुछ कारोबार नहीं होता, कभी गाड़ी पंचर हो जाती, कभी रोड पे गाड़ी खराब हो जाती। लेकिन देना तो देना ही है ऑटो वाले को पैसे। डिमांड किस तरह का रहेगा आपका? डिमांड ये है, डिस्ट्रिक्ट ऑटो बैन होना है यहाँ पे हैदराबाद में। और दूसरी चीज ये है, रैपिडो, उबेर, ये ओला, ये लोग है परवाह नहीं है भाई, लेकिन पैसा तो बढ़ाना ना। 10 किलोमीटर के लिए उन्हें 120 रुपये दे रहा, 120 रुपये दे रहा तो 135 दे रहा, तो उसमें से 50-60 रुपए की तो गैस चल जाती, उसमें आयल भी रहता, आयल चले जाता। फिर सवारी बुलाने के बाद लोग स्पॉट पे फिर मीटर वगैरह है, मीटर से चलने के लिए? मीटर तो मीटर 15 साल पहले बढ़ाए थे, अभी तक मीटर भी नहीं बढ़ा। बाबा रैपिडो ओला की वजह से हाँ, मीटर बढ़ा तो गवर्नमेंट को ये भला होता। ये शराब वराब भी बंद कराओ। हाँ, ये ड्रिंकिंग ड्राइव आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सर। हाँ, जैसा कि हर जैसा तालाब कट्टा है, जैसा याकूबपुरा है, जैसा अफजलगंज है, हर रोड पे दिन से ड्रिंकिंग ड्राइव चालू कर दिए ना, कोई नशेबाज ऑटो नहीं चलाता, वो लोग हट जाते। हैदराबाद में ऑटो बंद के दौरान पेश आने वाला वाकया महज एहतजाज नहीं बल्कि खुले गुंडागर्दी की मिसाल बनकर सामने आया है, जहां आज ऑटो बंद कॉल के दौरान बाज ऑटो यूनियन से वाबस्ता अनासिर ने कानून को हाथ में लेते हुए चलते हुए ऑटोस को जबरदस्ती रोका और मासूम मुसाफिरों को सड़क पर उतारा। आईनी शाहिदीन के मुताबिक खवातीन, बुजुर्ग, तालिबा और बीमार अफराद तक को किसी रियायत के बगैर खौफजदा हालत में ऑटो से उतरने पर मजबूर किया गया, जिससे शहर में अफरा तफरी और शदीद खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों का कहना है कि ये रवैया न सिर्फ गैर इंसानी बल्कि जमहूरी इक़दार और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि बंद के नाम पर आम आवाम को यरगमाल बनाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अवामी हलकों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एहतजाज के नाम पर शहरियों की इज्जत, सलामती और रोजमर्रा जरूरियात को रौंद देना जायज है। लोगों ने इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी गिरोह बंद के नाम पर अवाम को हिरासा करने की जुर्रत ना करे और शहर में कानून की बालादस्ती बरकरार रहे। हैदराबाद सिटी पुलिस के सीनियर ओहदेदार ने इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए वाज़ेह इंतबाह दिया कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी या अवाम को हिरासा करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुक्काम ने दो टोक अंदाज में कहा कि इस अमन व अमान को मुतासिर करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भाई कम दिया तुम्हारा ऐसा गाड़ी बंद करके भेजा उतारो। एक महीने से देख लिया हमारे जैसे शादी वाले फैमिली को जाना पेट के वास्ते हट गाड़ियाँ रोक के आगे वजह से वो नहीं बेटा, हम घर वाले
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना का वफद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। वफद के ज़ीरोच आमद के मौके पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों ने चीफ मिनिस्टर और वफद के दीगर अरकान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर माल मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर IT व सनत डी श्रीधर बाबू और कुछ आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वफद का ज़्यूरिच एयरपोर्ट पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस्तकबाल किया। ये वफद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेगा और तेलंगाना राइजिंग दस्तावेज पेश करते हुए रियासत के लिए सरमाकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। ये वफद डॉस में कई बैनुल-अक़वामी और आलमी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा और सरमाकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर तवील मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाने के प्रोग्राम्स और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात को भी उजागर किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में बैरूनी सरमाकारी के हिसूल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2026-27 के दाखिलों के लिए टिमरेज़ की वेबसाइट का इफ्तिताह जान दिया, जिसके तहत रियासत भर के 205 इदारों में ऑनलाइन दाखिले अमल शुरू किया गया है। इस मौके पर टिमरेज़ के नायब सदर नशीन मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद टिमरेज़ बी शफ़ीउल्लाह IFS भी मौजूद थे। वेबसाइट के जरिए 5वीं जमात से इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर, जनरल व वोकेशनल तक दाखिले के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जबकि 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की मखलूआ नशिस्तों पर भी अक़लियती तलबा दरख्वास्त दे सकते हैं। रियासत में टिमरीज़ के तहत 107 बॉयज़ और 98 गर्ल्स इदारे चलाए जा रहे हैं, जिनकी 75% नशिस्तें अक़लियती तलबा और 25% गैर अक़लियती तलबा के लिए मुख्तस हैं। दाखिलों की रहनुमाई के लिए हर इदारे में हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जबकि वालिदीन वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने बताया कि मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, मुफ्त रिहाइश, दीनी तालीम, स्पोर्ट्स, NCC, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के साथ साथ 13 जूनियर कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज और 18 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में मुसाबिकती इम्तिहानात की कोचिंग फराहम की जा रही है और तलबा की सेहत व तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। लिहाजा सरपरस्त टिमरीज़ इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिलों की यकीनी बनाएं। साबिक़ रियासती वज़ीर व सीनियर BRS रुकन असम्बली T हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत इंतखाबी सियासत पर अमल कर रही है और मुजव्वज़ा मुनसिपल इंतखाबात में अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। हरीश राव को तेलंगाना पुलिस ने फ़ोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। हरीश राव की पूछताछ के लिए रवानगी से कबल साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। हरीश राव ने तेलंगाना भवन रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी को मुजव्वज़ा मुनसिपल इंतखाबात में अवामी नाराज़गी का अंदेशा लाहक है, इसलिए अवाम की तवज्जो हटाने इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी कॉलेजेस में टेंडर्स के अमल में बेकायदगियां हुई हैं और इसका अफशा करने पर ही इन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर ने सिंगरेनी के टेंडर्स में बेकायदगियों के ताल्लुक से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। हुकूमत इस मसले से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है और इसीलिए इन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है, ताहम वो इससे खौफजदा नहीं होंगे। మరిది భాగవతాన్ని పొద్దున్నే బయట పెడితే సాయంత్రానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు నాకు నోటీస్ పంపారు. నిన్న నోటీస్ కూడా ఎప్పుడు ఇచ్చారు? నిన్న రాత్రి దాదాపు 9 గంటల సమయంలో మా ఇంటి దగ్గర మా మెయిడ్ కు నోటీస్ ఇచ్చి వెళ్లారు. నేను ఆ సమయంలో సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో నా ప్రజలతో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాను. అయితే నిన్న రాత్రి 9ంటికి నోటీస్ ఇచ్చి ఉదయాన్నే 11 గంటలకు రమ్మన్నారు. నేను హైదరాబాద్ లో లేను, అయినా కూడా రాత్రే హైదరాబాద్ చేరుకొని ఈరోజు వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ మీద మేము హాజరు కావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే మాకు చట్టాన్ని గౌరవిస్తాం, న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది, తప్పకుండా వెళ్తాం. మేము ఏ తప్పు కూడా చేయలేదు, అందువల్ల భయపడము. ఈ రేవంత్ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు బెదిరే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు.
ఎందుకంటే ఇలా రేవంత్ రెడ్డి మాకు తెలుసు నిన్న ఆయన బావమర్ది భాగవతాన్ని పొద్దున బయట పెడితే సాయంత్రానికి నోటీసు పంపిండు. ఆ భాగవతం మీద కనీసం ఒక్క మంత్రి గాని ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన కూడా లేదు. ఎందుకంటే మేము అన్ని ఆధారాలతో నిజాలు బయట పెట్టినాం కనుకనే ఆ సమాధానం లేక డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ కోసం ఈ నోటీస్ పంపిండని అర్థమైతా ఉంది. साबिक वजीर और असेंबली में बीआरएस के डिप्टी लीडर टी हरीश राव ने खम्भम में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इल्जाम आयद किया कि रविंद्र रेड्डी का पूरा सियासी सफर धोखाधही, मौका परस्ती और खुफिया मुफाहिमतों से भरा हुआ है। हरीश राव ने कहा कि तेलुगु देशम से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करके रविंद्र रेड्डी ने न सिर्फ अपनी जमात बल्कि एनटीआर जैसे अजीम लीडर से भी गद्दारी की और आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहते हुए कांग्रेस क़यादत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी धोखा दे रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बज़ाहिर बीजेपी की मुखालिफत का दावा करने वाले रविंद्र रेड्डी दरपर्दा ही बीजेपी और इसकी हलीफ तेलुगु देशम से राब्ता रखते हैं, जिससे कांग्रेस के सियासी मौक़िफ़ को नुकसान पहुंच रहा है और बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद को फायदा हो रहा है। हरीश राव ने रविंद्र रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू का सियासी मोहरा करार देते हुए कहा कि वो तेलंगाना के मुफादात के बजाय आंध्र प्रदेश के मंसूबों बशमुल बंकाचर्ला प्रोजेक्ट की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने नोट बराए वोट मामला, एमएलसी इलेक्शन में रिश्वत की पेशकश और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में अलहदा तेलंगाना हामियों को धमकाने जैसे वाक़यात का हवाला देते हुए दावा किया कि रविंद्र रेड्डी की सियासत झूठ, गद्दारी और साजिशों पर मबनी है और इनके इश्तियाल अंगेज बयानात पर कार्रवाई का डायरेक्टर जनरल पुलिस से मुतालबा किया। बीआरएस के रुकने कानूनसाज कौंसल डी श्रावण ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी को एक खुला मकतूब रवाना करते हुए इनके तर्ज सियासत और रवैये पर शदीद तनकीद की है और सवाल उठाया कि आया वो वाकई तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं या किसी ग्रोहवारी गैंग लीडर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। डॉक्टर श्रावण ने खम्मम के जलसे आम में अपोजिशन बीआरएस के खिलाफ चीफ मिनिस्टर की जबान को गैर जमहूरी इश्तियाल अंगेज और नफरत को फरोग देने वाली फिरके करार देते हुए कहा कि ख़त्म करने और दफन करने जैसे अल्फाज एक आईनी ओहदा रखने वाले शख्स को जेब नहीं देते। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इख्तिदार कांग्रेस के पास होने के बावजूद रविंद्र रेड्डी की सियासी रूह आज भी तेलुगु देशम से वाबस्ता है और वो चंद्रबाबू नायडू के एजेंडे पर अमल करते हुए कांग्रेस और दिल्ली हाई कमान को धोखा दे रहे हैं, जबकि बीजेपी और तेलुगु देशम से खुफिया मुफाहिमत के जरिए तेलंगाना में तेलुगु देशम के अहिया के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्रावण ने दावा किया कि पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए सीनियर कांग्रेसी कायदीन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, जबकि फ्यूचर सिटी और $5 ट्रिलियन मईशत के नाम पर आवाम को फरेब दिया जा रहा है। हालांकि रियासत की मैशी हालात अबतर है और हुकूमत वजीफे या मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने के भी अहल नहीं। उन्होंने केसीआर को फादर ऑफ तेलंगाना करार देते हुए कहा कि बीआरएस और इसकी क़यादत की तौहीन तेलंगाना की इज्जत नफ्स की तौहीन के मुतरादिफ है और मुतनब्बा किया कि इख्तिदार आर्जी होता है, तकब्बुर जवाल का सबब बनता है, इसलिए चीफ मिनिस्टर को देर होने से पहले अपना रवैया बदल लेना चाहिए। तेलंगाना जागृति की सरबराह व साबिक रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता तेलंगाना में नई सियासी जमात तश्कील दे सकती हैं। कहा गया है कि कविता संजीदगी से नई सियासी जमात तश्कील देने के ताल्लुक से गौर कर रही हैं। पता चला है कि कविता ने इस सिलसिले में सियासी हिकमत अमली तैयार करने में महारत रखने वाले प्रशांत किशोर से भी मुशावरत शुरू कर दी है और वो मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रही हैं। कविता ने दाखिली इख्तलाफात के बाद बीआरएस पार्टी और कानून साज कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया था। उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि वो अपने हामियों से मुशावरत के बाद मुस्तकबिल के ताल्लुक से फैसला करेंगी। अब पता चला है कि कविता सियासी जमात तश्कील देने पर संजीदगी से गौर कर रही हैं और इसकी तफसीलात पर उन्होंने प्रशांत किशोर से मुशावरत भी शुरू कर दी है। कविता ने गुज़िश्ता दिनों रियासत के मुख्तलिफ अजला और शहर में मुख्तलिफ मुकामात के दौरे भी किए थे और अवाम से मुलाकातें भी की थी। उम्मीद की जा रही है कि कविता इस सिलसिले में बहुत जल्द कोई फैसला कर सकती हैं। हैदरा की जानिब से गटकेसर के करीब एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर नल्ला मल्ला रेड्डी की जानिब से कब्जा की गई 6 एकड़ से ज्यादा सरकारी अराजी को वापस हासिल कर लिया गया है।
कहा गया है कि नल्ला मल्ला रेड्डी नामी शख्स ने सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया था और इस अराजी को एक ले आउट में तब्दील करके जुमला 50 प्लॉट्स बनाए गए थे। ये प्लॉट्स मुख्तलिफ अफराद को फरोख्त भी कर दिए गए थे। हाइड्रा ने ताहम एक कार्रवाई करते हुए इस प्लॉट्स को वापस हासिल कर लिया है और ले आउट को बर्खास्त कर दिया गया है। कहा गया है कि हाइड्रा से प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान शिकायत की गई थी कि नल्ला मल्ला रेड्डी ने सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया है। इस शिकायत का जायजा लेने के बाद सरकारी अराजी को वापस हासिल कर लिया गया है और नाजायज कब्जे को बर्खास्त कर दिया गया। कहा गया है कि नल्ला मल्ला रेड्डी ने हाइड्रा की कार्रवाई में खलल पैदा करने की कोशिश की और कहा कि एजेंसी ने इसे पहले से नोटिस जारी नहीं किया है। ताहम हाइड्रा ने इसकी मदाखलत को नाकाम बनाते हुए इस अराजी पर नाजायज कब्जा बर्खास्त कर दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शुरू की गई नई पहल सी मित्रा पर बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है और इसके जरिए मसनूई ज़हानत की मदद से अवाम की हर मुमकिना मदद भी की जा रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर वीसी सजनार की निगरानी में सिटी पुलिस ने सी मित्रा सहूलत का आगाज किया गया था, जिसके जरिए अवाम अब घर बैठे अपनी शिकायत पुलिस से दर्ज करवा सकते हैं और FIR हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता 10 दिन कबल ये पहल शुरू हुई थी। मसनूई ज़हानत की मदद से कायम किए गए हेल्प डेस्क के जरिए गुज़िश्ता 10 दिन में 100 FIR दर्ज किए गए हैं। इसके लिए अवाम को अब किसी भी पुलिस स्टेशन से रुजू होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने घर बैठे ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत तैयार करने में भी अवाम अब मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए अवाम की मदद की जा रही है। सिटी पुलिस का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से अवाम की मदद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इंसाफ रसाई के अमल को तेज करने पर तवज्जो दी जा रही है। प्रोफेसर कोदंडराम की क़ियादत वाली तेलंगाना जनता समिति से वाबस्ता कायदीन ने आज नामपली नुमाइश में मुबैना धांधलियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए संगीन इल्जामात आयद किए हैं। TJS सिटी सदर नरसैया, सिटी सेक्रेटरी रामचंद्र, सिटी मिनॉरिटी सेल सदर सैयद अबरार अली और ज्वाइंट सेक्रेटरी जहूर ने कहा कि एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारान स्टॉल होल्डर्स से गैर कानूनी तौर पर भारी रकम वसूल कर रहे हैं, जबकि एडवाइजर व कन्वीनर प्रभाकर पर 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफी रकम तलब करने का इल्जाम है। रहनुमाओं के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2 से 3 लाख रुपए में मिलने वाला स्टॉल इस साल 5 से 8 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा नुमाइश में दाखिला टिकट 50 रुपये होने और अशिया जरूरिया की मनमानी कीमतें जैसे 20 रुपये की पानी की बोतल 40 रुपये में फरोख्त पर भी सख्त एतराज किया गया है। इस मौके पर CPIML के रियासती सेक्रेटरी रुकन जी संदनम और CPIML की अनुराधा ने भी एहतजाज में शिरकत की और टिकट की कीमत घटाकर 20 रुपये करने और धांधलियों की फौरी जांच का मुतालबा किया। एग्जीबिशन ग्राउंड में स्टॉल होल्डर के साथ जो जुल्म हो रहा, प्राइम के नाम पे लाखों रुपए बटोर रहे, प्रभात शंकर और उसके लोग लाखों रुपए का जुल्म कर रहे हैं और टिकट भी इतना बढ़ा दिए कि 50 रुपए टिकट कर दिए, 20 रुपए काफ़ी है वो, और इनका जुल्म ख़त्म करना है और प्रभात शंकर को भी वो ओहदे से हटाना है और आवाम को भी बहाल करना है, स्टॉल होल्डर्स को भी बहाल करना है। और इसीलिए आज हम ये रैली DGS पार्टी ऑफिस से कोदंडराम साहब की सरपरस्ती में हम लोग उनकी हिदायत पर यहाँ से निकलकर एग्जीबिशन ग्राउंड पर हम ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ जाके रैली ख़त्म होंगी और ये मैसेज ये दे रहे हैं कि हैदराबाद की आवाम को बिलखुसूस और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि ये प्राइम के नाम पे ये जो लूटम लाट है वो ख़त्म की जाए और 50 रुपये जो टिकट रखे हैं बिल्कुल मुनखदा उसको ख़त्म कर देना, ख़त्म करके 20 रुपये काफ़ी है वो। ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో నుమాయిష్ పేరుతోటి జరిగే ఈ ఎగ్జిబిషన్లో జరుగుతున్న అక్రమాలపై పోరాటం చేస్తున్నాం. ఏదైతే ఎగ్జిబిషన్లో స్టాళ్ల కోసం టెండర్లు పిలవడం దగ్గర నుంచి అక్రమంగా తమ వ్యక్తులకు ఇల్లీగల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సొసైటీ కమిటీ కన్వీనర్ ప్రభాశంకర్ నేతృత్వంలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ అక్రమాలను అరికట్టాలని ఇప్పటికే మేము పెద్ద ఎత్తున ఉన్నతాధికారుల నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు వినతి పత్రాలు సమర్పించడం జరిగింది. कोदंडराम साहब TJS पार्टी की हिदायत पे हम एक रैली निकाले हैं, पीसफुल रैली है ये, और इसमें हम लोग स्टॉल होल्डर्स के
सिलसिले से बात कर रहे हैं। स्टॉल होल्डर्स का मुकम्मल प्राइम हटा दिया जाए। कारोबार कुछ भी नहीं है वहाँ पर, पब्लिक भी ज़्यादा नहीं आ रही है। पब्लिक आने के लिए 50 रुपये से टिकट 20 रुपये मुकर्रर किया जाए और स्टॉल होल्डर्स पे जो जुल्म हो रहा है, प्राइम के नाम पे प्राइम हटा दिया जाए और प्रभा शंकर को ये सीट से हटा दिया जाए। इलीगल कन्वीनर हैं, उन्हें हटा दिया जाए। हमारी मांग है, पीजीएस पार्टी की तरफ से ये पूरी ये मांग है, प्राइम हटा दिया जाए, प्रभा शंकर को हटाया जाए, 50 रुपये से 20 रुपये टिकट कर दिया जाए। बस हमारी यही मांग है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिस्टर आरवी कर्नल ने कहा कि प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत मिलने वाली अवामी शिकायत की यकसुई पर कॉर्पोरेशन की जानिब से तवज्जो दी जा रही है और अवाम की हर मुमकिन मदद के जज्बे से काम किया जा रहा है। कमिश्नर बल्दिया ने जीएचएमसी के तहत मुनाखद होने वाले अवामी शिकायत की वसूली के प्रजावाणी प्रोग्राम में खुद शिरकत की। मिस्टर आरवी कर्नल ने अवाम से मुलाकात की और इनसे बातचीत करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। कमिश्नर जीएचएमसी ने अवामी शिकायत का बरसरे मौके जायजा लिया और इनकी यकसुई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि अवामी मसाइल की बरवक्त और मौसर ढंग से यकसुई की जानी चाहिए और शहरियों की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत की दिलचस्पी से समाअत होनी चाहिए और जो शिकायत दर्ज करवाई जाएं इनका जायजा लेते हुए मुनासिब इक़दाम किए जाने चाहिए। रोड सेफ्टी महोत्सव के तहत जिले पुलिस आदिलाबाद की क़ियादत में अराइव अलाइव प्रोग्राम का बाज़ाब्त आगाज AR हेडक्वार्टर्स में अमल में आया, जिसमें जिले ऑफिसरान, अवामी नुमाइंदगान, ड्राइवर्स, गाड़ियों के मालिकान, ताजरीन, ड्राइवर यूनियंस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस 10 रोज़ा मुहिम के दौरान सड़क हादसात की रोकथाम और अवामी शऊर बेदारी करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले चीफ जस्टिस M प्रभाकर राव ने सड़क हिफाजती क़वानीन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया, जबकि जिले SP अखिल महाजन IPS ने कहा कि डिफेंसिव ड्राइविंग के जरिए हादसात और जानी नुकसान में नुमाया कमी लाई जा सकती है और जिले पुलिस रवा साल सड़क हादसात में 20% कमी लाने के हदफ के साथ मौसर इक़दाम करेगी। साथ ही वालिदीन को नाबालिग बच्चों को गाड़ियां ना देने और अवाम को तेज रफ्तारी, ट्रिपल राइडिंग और गलत रास्ते पर ड्राइविंग से गुरेज करने की हिदायत दी गई। ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటి అంటే అరైవ్ అనేది. ఇప్పుడు అరైవ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం తిరిగి ఇంటిలో ప్రాణంతో సహా ఇంట్లో రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా పోతాము, జనరల్ గా ఎవరైనా పోతే యాక్సిడెంట్ గురించి ఎవరు ఆలోచించరు. ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అవుతుందా కాదా, అందరు ఏంటి అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ డ్రైవర్, నాతో ఎప్పుడూ ఏం కాదు, నేను ఫిట్ డ్రైవర్, నేను బెస్ట్ డ్రైవర్, నేను 100% నాకంటే బెటర్ ఎవరు లేదు, నేను ఎక్కడైనా పోవచ్చు, నాకు ఏం కాదు, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. అది మంచిది, కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మంచిది. బట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ తో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మీరు అరైవ్ అలైవ్, మీరు ఇంటికి ప్రాణంతో సహా తిరిగి రావాలి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం జిల్లాలో ఆల్రెడీ మీరు DSP గారు అన్నారు, కొన్ని ఎఫర్ట్స్ మనం పెట్టాము ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గడానికి. ఈ 2023లో మనకి 128-129 ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి. దానికి ఆల్రెడీ 2024లో లోకల్ పోలీస్, DSP, CI, SI, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్ళ అందరి ఎఫర్ట్స్ వల్ల ఈ ఆల్రెడీ 12% తగ్గినాయి. ఆల్మోస్ట్ అది 127 నుంచి 112-113 వరకు వచ్చింది. ఈసారి మనం టార్గెట్ 20% తగ్గాలి. 112 కి 85 వరకు ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ రావాలి, ఇంకా 20% తగ్గాలి. ఎందుకంటే ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ లో ఎవరైనా చచ్చిపోతే దానికంటే వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఏమైనా ఎవరైనా మర్డర్లో చనిపోయారంటే మేబీ వాళ్ళ మధ్యలో ఏమైనా గొడవ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి తెలుసు దట్ ఒకరొకరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ నడుస్తున్నాయి, సమ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, సంథింగ్ ఇస్ దేర్, వాళ్ళకి తెలుసు మర్డర్ జరగవచ్చు, లేకపోతే సడన్ ఆవేశంలో జరిగింది. బట్ ఈ యాక్సిడెంట్స్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే आदिलाबाद शहर के वार्ड नंबर 44 के तहत संजय नगर, डालडा कंपनी और भक्तापुर के अवाम ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में साबिक कौंसलर शेख इमरान की कारकर्दगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी नुमाइंदगी के दौरान वार्ड की मजमूई तरक्की को तरजीह दी। अवाम के मुताबिक सड़कों, ड्रेनेज और नालों की तामीर पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, जिनमें डालडा कंपनी में BT रोड, हाई मास लाइट्स की तंसीब, RTO ऑफिस से भक्तापुर तक जदीद ड्रेनेज सिस्टम, संजय नगर में CC रोड्स,
क्लोड्स और बरक़ी मसाइल के हल के लिए नए ट्रांसफार्मर्स की तंसीब शामिल है। इसके अलावा मसाजिद, मंदिर और दरगाहों के लिए भी खुसूसी फंड्स मंजूर किए गए, जबकि कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात के तहत इंदिरमा और डबल बेडरूम मकानात, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, राशन कार्ड, CMRF और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए सैकड़ों खानदानों को फायदा पहुंचा। मुकामी अफराद का कहना है कि हालिया दिनों मजीद सड़कों की तामीर के लिए नए फंड्स की मंजूरी भी शेख इमरान की कोशिशों का नतीजा है और मजमूई तौर पर वार्ड के अवाम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन होकर आइंदा भी इनकी हिमायत का अज़्म रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आज हमने वार्ड नंबर 44 संजय नगर डाल्टा कंपनी और गुप्तापुर एरिया का हमने दौरा किया और हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों से बात भी की है। ये पता लगाने की कोशिश की है कि वार्ड नंबर 44 में जो इससे पहले काउंसलर इमरान नुमाइंदा काउंसलर रह चुके हैं, तो उन्होंने उनके दौर के अंदर क्या क्या कामों का अंजाम दिया। तो लोगों का कहना था जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि डाल्टा कंपनी में इस वक्त जो BT रोड है शुरू से आखिर तक वो इमरान के दौर के अंदर ही बनाई गई और इसके अलावा जैसे मंदिर है और दरगाह है और ऐसे ही यहाँ की मसाजिद में स्पेशल फ़ंड्स के ज़रिए से उन्होंने कुछ फ़ंड्स मंजूर कराया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 42 लाख रुपए फ़ंड्स मंजूर किया और उसी फ़ंड्स में से 4 लाख रुपए दरगाह और इसी तरह मंदिर के लिए फ़ंड्स मंजूर किया गया और इसका तामीरी काम अभी जारी है, पाए तकमील तक पहुँचना है और उम्मीद यहाँ के लोगों ने ज़ाहिर की है कि आइंदा वो पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। और इसी तरह मस्जिद के लिए भी उन्होंने कुछ फ़ंड्स मंजूर किए तामीरात के लिए अपनी नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट से, म्यूनसिपल से, कलेक्टर से। तो मस्जिद के अंदर, मसाजिद के अंदर भी ये पेमेंट के ज़रिए से तामीराती कामों को अंजाम दिया गया। और ऐसे ही हम इस वक्त यहाँ पर अभी है, हम हमारे कैमरे से आप देख सकते हैं कि मस्जिद फ़ातिमा के पास अतराफ़ के अंदर जो ये सड़कें हैं CC सड़कें, पहले CC सड़कें नहीं थी यहाँ के लोगों का कहना है, बल्कि कच्ची सड़कें थी। इमरान के दौर के अंदर उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए लाखों रुपये फ़ंड्स मंजूर कराते हुए म्यूनसिपल के ज़रिए से और इंतज़ामिया के ज़रिए से यहाँ की सड़कों को उन्होंने तामीर कराया और इसी तरह जो नालियाँ हैं, नाली को भी तामीर कराया और ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने बहाल किया। और इसी तरह करंट का मसला यहाँ पर बड़ा था, तो उसके लिए उन्होंने करंट डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी करते हुए ट्रांसफार्मर की तनसीब अमल में लाई। और इसी तरह हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, उनका कहना था कि इमरान मुस्तैदी के साथ में यहाँ के लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो कल्याण लक्ष्मी हो या शादी मुबारक हो, हिंदू मुसलमान बल्कि तमाम मज़ाहिब को वो लेकर चल रहे हैं। और लोगों ने इरादा ज़ाहिर किया कि उन्होंने पिछले मौके पर अच्छा काम अंजाम दिया, इस मरतबा भी वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें हिमायत करने के लिए इरादा ज़ाहिर कर रहे हैं। अब इसी ज़िम्मा में हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? आपका बीबीएन चैनल में वेलकम है। आप कहाँ पर रहते? मैं यहाँ संजय नगर में रहते। तो बताइए कि इससे पहले जो यहाँ पर कच्ची सड़कें थी, जो सड़कें अभी दिख रही, इससे पहले ये पक्की सड़कें थी या कच्ची सड़कें थी? कच्ची थी। तो किसके दौर में ये अंजाम दी गई? इमरान के दौर में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पहले ये कच्ची सड़कें थी, इमरान काउंसलर बनने के बाद में उन्होंने फंड्स मंजूर करके सड़कें बनाई इमरान काउंसलर। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर वेल्डिंग यूनियन के सदर जमील खान है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जमील, में बताइए कि आप यहाँ पर रहते, आपकी नज़र में इमरान ने क्या क्या कामों का अंजाम दिया? तो इमरान पहले पूरे कच्चे रोड़ा थे। मैं जब भी बता चुका हूँ कि वार्ड नहीं था, 28 था, 44 हो जब से इसमें इतिहास काम हुआ। कोई एक जगह भी आपको रोड मिलेंगी नहीं कच्ची, एक जगह भी ड्रेन नहीं मिलेंगे आपको, हर चीज़ का काम इमरान करा। और इमरान के वैसा काउंसलर होना है, महिला में बोलते पूरे लोग हम लोग चाह रहे महिला वाले कैनेट होना, हम मिनिस्टर डिप्यूट होना। जैसे कि बाज़ लोग इल्ज़ाम लगा रहे कि इमरान के दौर के अंदर उन्होंने पब्लिक के कामों को नज़रअंदाज कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे झूठे बातें हैं बोलने वाले, अपोजिशन वाले बोलते रहते, जो अच्छा काम करता उसके ऊपर आवाज़ उठती रहती, हमेशा उठती गई है आवाज़, कुछ नया नहीं है। अखिलाबाद में नहीं, पॉलिटिकल में एमएलए साहब के बारे में बोलते तो इमरान तो काउंसलर है, उन्हें काम नहीं करा। तो इससे पहले MIM से खड़ा था, फिर भी हारे बाद भी ग्राउंड नहीं छोड़ा 5 साल, अभी भी 5 साल नहीं छोड़ा इंशाल्लाह, और 15 साल तक वो नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो कोई नहीं हरा सकता, पब्लिक उसके साथ है। पार्टी पर शुक्रिया। ये थे यहाँ के अवाम के कुछ इजहार ख्याल, जो अवाम हमारे चैनल से बात करते हुए बता रहे थे कि इमरान ने अच्छा काम किया और वो लोग उन्हें सपोर्ट करने का इरादा ज़ाहिर कर रहे हैं कि आइंदा भी अगर वो काउंसलर बनते हैं, मुंतखब होते हैं, तो यहाँ के वार्ड नंबर 44 की तरक्की होगी। कैमरामैन असमत अली के साथ फजल अहमद याफ़ी, बीबीएन चैनल, आदिलाबाद।
आदिलाबाद के चोड़ा मंडल के केशवपट्टनम के नवमंतखब सरपंच शेख अल्ताफ ने ओहदा संभालते ही गांव की तरक्की और अवलिन तरजीह देते हुए अमली इक़दाम का आगाज कर दिया है। मंगल के रोज उन्होंने अपनी जाती रकम से मिशन भागीरथ के पाइपलाइन कामों का इफ्तिताह किया और AGS फंड के तहत ग्राम पंचायत इमारत की तामीर का आगाज किया, जिस पर मुकामी अवाम में इत्मीनान पाया जा रहा है। सरपंच शेख अल्ताफ ने यकीन दिलाया कि तमाम तरक्याती काम शफाफियत और मेयार के साथ मुकम्मल किए जाएंगे और जल्द ही दिगर बस्तियों में भी बुनियादी सहूलतों की फराहमी का आगाज होगा, जबकि अवाम ने नए सरपंच के फौरी इक़दाम को गाँव की तरक्की और खुशहाली की जानिब मुस्बित कदम करार दिया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद पुराना पुल फिरके वाराना इश्तियाल अंगेज का मामला, चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाने वाले 11 अशरार गिरफ्तार, खातून भी शामिल, CCTV शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी, जुडिशियल कस्टडी में दिए गए तमाम मुल्जिमान। अवामी एहतजाज या गुंडागर्दी, हैदराबाद में ऑटो बंद एहतजाज के दौरान शहरियों को मुश्किलात, यूनियन के कुछ अनासिर ने ऑटो जबरदस्ती रोके और मुसाफिरों को उतारा, तेलंगाना पुलिस का सख्त कार्रवाई का इंतबाह। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए तेलंगाना के वफद की स्विट्जरलैंड आमद, एयरपोर्ट पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर अजहरुद्दीन ने टिमरीज वेबसाइट का किया इफ्तिताह, रियासत भर के 205 इदारों में ऑनलाइन दाखिले का आगाज, दाखिलों के लिए हर इदारे में हेल्प डेस्क कायम। तेलंगाना हुकूमत इंतखामी सियासत पर अमल पैरा, मैं पूछताछ की नोटिस से खौफजदा नहीं हूँ, BRS लीडर T हरीश राव का दावा, फोन टैपिंग मामले में पुलिस के सामने हुए हाजिर। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।